Good morning, all of you. Welcome to your TSN English class. This is your chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. And I just want to tell you about that previously we have read that this there are two boys in this chapter, and these boys are like Armenian boys. And the first one, Aram, he's explaining about his brother cousin Murad, that how his brother behavior is, and then he's talking about his tribe, that his tribe is known for trust and honesty. So today we'll start our chapter with this paragraph here. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. So here in these lines, Aram, he's saying that whatever the results are there in front of him, that Murad woke him up in the morning at 4 a.m. sorry, and he's saying that if you want to ride, please be quick. So this is like the result for him, and वो जो है उसके सामने है, everything is in front of him, that वो horse को देख सकता है, that he is a magnificent horse, he is a wonderful horse. Even though I could smell it, he is saying that मैं horse को smell कर सकता हूँ. So lovely, जो horse है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. Even though I could hear it breathing, वो horse की breathing की आवाज़ सुन सकता है. So exciting. So everything here in front of him is so exciting for him. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad. But one thing which he couldn't believe, that उसका जो ब्रदर है मुरेद, कि ये हॉर्स उससे बिलोंग करता है, या वो इसे खरीद कर लाया, और विथ मी और विथ एनी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली. इवन दो वो ये भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये हॉर्स जो है कहीं ना कहीं उनकी किसी फैमिली मेम्बर ने लेकर आया या परचेज किया है, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. Now he's saying that कि ना जागते हुए ना सोते हुए, that means not in reality or not in dreams. You're asleep or awake means not in reality and not in dreams. वो सोच भी नहीं सकता कि उसका जो कज़न है मुरेद, वो एक हॉर्स खरीद कर लाया है, या फिर उनकी फैमिली में से कोई लाया है, एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट. और अगर ऐसा है कि उसका भाई वो उसे खरीद कर नहीं लाया है, देन ही मस्ट हैव स्टोलन इट. देन वो कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहा था कि अगर ऐसा वो ख़रीदने की तो उनकी फैमिली कंडीशंस ही नहीं थी, इवन फैमिली में कोई नहीं खरीद पा रहा था, तो कहीं उसने वो हॉर्स चुराया तो नहीं है. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और उसका माइंड ये बिलीव करने में भी उसका माइंड ये बिलीव ही नहीं करना चाहता था. रिफ्यूज़ या मीन्स ही इज़ नॉट, हिज माइंड इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि उसके भाई ने ये सब कुछ चुराया है. वाई ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट? बिकॉज उनकी जो ट्राइब है, सो देयर ट्राइब इज़ बेसिकली नोन फॉर वॉट? फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट. सो दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट एबल टू बिलीव दैट no member of the Garogolianian family could be a thief. तो वो कह रहा है क्योंकि हमारी ट्राइब से कोई मेंबर चोर नहीं हो सकता. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. So here he is saying that ये मेरा जो भाई है, मैंने पहले उसने अपने भाई को देखा, कज़न को, एंड देन उसने हॉर्स को देखा. हॉर्स का फेस जो था ऐसा लग रहा था दैट इज़ some kind of piousness or calmness is over there on the face of horse.
जो कि उसे अच्छी लग रही थी। एक तरफ तो उसे हॉर्स जो है वो सामने से या उसकी जो अपीयरेंस है वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी एंड ही फेल्ट डिलाइटेड। एंड ऑन द अदर हैंड कि वो ये बात सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था दैट अगर ये हॉर्स चुराया हुआ है तो ये जो फीलिंग है, दिस फीलिंग, सो ही इज़ अफ्रेड ऑफ दैट और फ्राइटनड ऑफ दैट फीलिंग, उसे डर भी लग रहा था एट द सेम टाइम। मुरेद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? सो उसने मुरेद से पूछा कि तुम ये घोड़ा कहाँ से तुमने चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। सो मुरेद उसे रिप्लाई में ये नहीं बताता कि उसने घोड़ा कहाँ से लिया है, वो उसे कहता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू राइड दिस हॉर्स then please come out of your window. It was true then, he had stolen the horse. उसने कोई पॉजिटिव रिप्लाई या कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं से उसे डाउट हुआ था कि अब ये जो हॉर्स है दैट इज़ लाइक अ स्टोलन हॉर्स। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब वो कुछ सवाल ही नहीं था उसके माइंड में। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो मुझे इन्वाइट करने आया था कि मेरे को ये घोड़े की राइड करनी है या नहीं करनी है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। सो हियर जो वो है अरम, वो कह रहा है कि उसके लिए घोड़ा चुराना भी ऐसा था जैसे उसने जो है घोड़ा चुरा लिया हो और उसके लिए ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं थी, या उसे वो चुराए हुए घोड़े की राइड करना एकदम पैसे चुराने के इक्वलेंट लग रहा सा था। सो फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। सो ही इज सेइंग दैट उसके लिए चोरी मतलब चोरी ही है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, so students move on to next page. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. So अगर हम stealing या फिर हम चोरी के बारे में सोचते हैं तो उसका भाई और यह जो है एक तरीके की चोरी नहीं होनी चाहिए, जब तक कि हम इससे बचने के लिए प्लीज़ नहीं करते, जो कि रियलिटी में वो जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। I would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो वो कह रहा है कि वो ऐसा हम नहीं कर सकते थे। Let me put on some clothes, I said. अब वो जो है आरम वो भी रेडी हो गया हॉर्स पे राइड करने के लिए, तो उसने अपने भाई मुरैद को कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ही सेड कि ठीक है, यू कैन वेयर योर क्लोथ्स बट क्विकली। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुरैद। सो ही सेइंग दैट कि वो खिड़की से जो है वो यार्ड में उनके यार्ड एरिया या आंगन में कूदा एंड फ्रॉम द विंडो ही लीव्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड टू माई कज़न मुरैद, और फिर वो घोड़े के पीछे अपने कज़न मुरैद के साथ बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of a family, began to sing. I mean, he began to roar. So here in these lines, आरम जो है वो अपने भाई मुरैद के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। सो ही इज सेइंग दैट कि ये जो वॉलनट एवेन्यू वाला जो एरिया है, पर वो दोनों जो भाई हैं वो उस वक्त वॉलनट एवेन्यू मीन्स शहर का जो एज एरिया है उसको वॉलनट एवेन्यू कहा जाता है, तो एज वाला जो एरिया यानी जो शहर का लास्ट कॉर्नर है वो वहाँ पे थे।
एंड उनके घर के पीछे थोड़ा कैसा एरिया था, थोड़े जो विलेजर्स होते हैं, जो देहाती लोग होते हैं, उनका इलाका था। कुछ ऑर्चर्ड्स, दैट मीन्स अंगूर के बगीचे, और कुछ वाइन यार्ड्स अंगूर के बगीचे, और ऑर्चर्ड्स यानी फूल फल वाले उद्यान या बगीचे थे। इसके अलावा उनके वहाँ इरिगेशन डिचेस, जैसे खेत वगैरह में होते हैं इरिगेशन के लिए डिचेस बनाए जाते हैं, वो सब, और कुछ कंट्री रोड्स यानी कि गांव जैसी सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से भी कम में वो लोग ऑलिव एवेन्यू पर थे। एंड तब क्या हुआ, जो हॉर्स है वो थोड़ी सी अपनी जो हॉर्स वाली चाल है वो चलने लगा। द एयर वॉज फ्रेश, उन्हें जो एयर है वो सब बहुत फ्रेश लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि दिस हॉर्स राइडिंग इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर देम, सो दैट इज़ वाई दे आर एन्जॉइंग दैट राइड। सो वो जो है घोड़े की चाल को फील कर पा रहे थे। और उसका जो कज़न है, भाई ब्रदर है, मुरेद, एक ऐसा बच्चा था हु इज़ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स इन हिज फैमिली, जो कि हर ऐसी चीज़ करना चाहता था विच इज़ लाइक क्रेजी और काइंड ऑफ एडवेंचरस फॉर हिम। सो वो घोड़े पे बैठा हुआ था, एंड वो जो है वो उसने मुरेद ने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। एंड गाना गाने से यहाँ मीन्स ये है कि वो घोड़े पे बैठ के उस फीलिंग को इतना एंजॉय कर रहा था that he started some kind of, you can say that your roaring is written over here, but he's screaming over there. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. सो हियर इट इज़ रिटन ओवर दैट कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट या क्रेजी बिहेवियर वाला होता है, एंड उनकी फैमिली में हमारे उनके जो नेचुरल डिसेंडेंट्स थे उसमें से ये कहीं ना कहीं ये गुण जो है वो मुरेद में आया था। बिफोर हिम वॉज अंकल खुसरोव, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the Shan Jacquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, paid no attention to it. So वो कह रहा है हमारी फैमिली में भी एक मेंबर ऐसे ही हैं जो कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और वो हैं उनके अंकल खुसरोव, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यू कैन से दैट इनॉर्मस मैन है, बड़े शक्तिशाली टाइप के, पावरफुल टाइप के मैन हैं, जो कि सैन जैक्विन वैली में जो जहाँ जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया को कहते हैं सैन जैक्विन वैली में सबसे लार्जेस्ट मुस्टैचेस वाले हैं। और उनका जो बिहेवियर है दैट इज़ वेरी फ्यूरियस और अग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर, एंड एट द सेम टाइम हिज बिहेवियर इज़ लाइक इरिटेबल, बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट, लाइक ही इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ नॉट पेशेंसफुल। सो ऐसे प्रकार के उनके जो हैं अंकल खुसरोव हैं वो हैं। ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो सिर्फ अपने बात करने के तरीके में ज़ोर से स्क्रीम करते हैं तभी वो लोगों को बात करना बंद करवा देते हैं। इस तरीके का उनका बिहेवियर है। उनके बिहेवियर से किसी को कोई नुकसान नहीं है, बट अगर आपको इससे बचना है तो जस्ट डोंट पे अटेंशन ऑन हिम। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट। ये सब कुछ था, और वो ये कह रहा है ये सब कुछ काफ़ी है, इन सब से उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell their house was on fire. This man Khusro sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusro roared, "Enough, it is no harm, I say." So यहाँ पर in these lines जो अरम है वो अंकल खुसरोव के कुछ इंसिडेंट्स हमें बता रहा है, दैट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज अंकल इज
हैविंग और शोइंग टू अदर पीपल दैट एक बार की वो हमको इंसिडेंट बता रहा दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये नहीं, बल्कि अंकल खुसरो का बिहेवियर ऐसा है कि लोग क्या सोचते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। एक बार उनका खुद का बेटा, अंकल खुसरो का जो एक बेटा है जिसका नाम है अराक, वो एक बार दौड़ता हुआ आया और उसने 8 ब्लॉक्स तक, इतनी दूर से वो दौड़ता हुआ आया जहाँ उसने, उसके जो फादर हैं अंकल खुसरो, वो बार्बर शॉप पे अपनी मुस्टैचेस कटवा रहे थे। उस जगह अपने फादर को वो सिर्फ ये बताने आया था कि उनके घर में क्या हो गया, देयर हाउस वाज ऑन फायर, उनके घर में आग लग गई है। तो अंकल खुसरो इस टाइप के व्यक्ति हैं कि वो ज़ोर से चिल्लाने लगे और उन्होंने अपने बेटे को ये कह दिया दैट देयर वाज नो हार्म, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। उनका बेटा कहता रहा कि पापा मकान में आग लग गई है, बट अंकल खुसरो ने फिर से कहा कि बहुत हो गया, मैं कहता हूँ इससे कोई इनफ इज़ इनफ, इट इज़ नो